friends, I'm here with my channel Solving Questions with Gauri ma'am. Here we solve questions from IIT JAM examination. So let's start. Yes, today's question is what is IIT JAM examination? So आज की वीडियो में हम पता करेंगे कि IIT JAM examination है क्या. देखो, this is the examination which is conducted by IITs every year. This is conducted in the month of February. फरवरी में एग्जाम होता है और इसके फॉर्म्स अभी सितंबर फर्स्ट वीक में निकलते हैं. तो आपको ये फॉर्म अभी भरना पड़ेगा तो आप एग्जाम को अपीयर हो पाओगे. So we'll go through the pattern paper. What is the paper pattern for this exam? See, any students from who is pursuing bachelor's degree, आप अगर किसी भी बैचलर्स डिग्री के लिए अपीयर हो तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हो. आपकी बैचलर्स डिग्री में आपको लाइफ साइंस का कौन सा भी तो सब्जेक्ट चाहिए, जैसे कि यू मे हैव बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स. दीज कैन अपीयर फॉर दिस एग्जामिनेशन. This is open for Indian nationals and outsiders also. In this exam, there are questions from 4 subjects. This is the exam in a biotechnology. So इसमें आपको जो questions आएंगे तो वो 44% जो questions होंगे वो होंगे बायोलॉजी के सेक्शन से. Then 20% weightage is given for chemistry. केमिस्ट्री से क्वेश्चंस आएंगे जो 20% होंगे and 18% weightage is given for questions from physics and mathematics. So most of the portion is covered from the biology. And the syllabus is available on the website and they have designed a syllabus which is based on the syllabus of BSc level. At the BSc level जो syllabus होता है हमारा उसके हिसाब से IIT JAM का syllabus बना हुआ है. So you can go through that syllabus also. हम यहाँ पर देखेंगे पैटर्न पेपर कैसा है. See, total marks for this question paper is 100 mark. 100 mark का question paper होगा. The exam is computer based. Online exam होती है ये. Total questions उसमें आते हैं 60. And there is a different sections given. First section जो है वो है section A. This is a MCQ type of section. That is a multiple choice questions would be there in this section. Here total number of questions are 30 questions. इसमें देखिए 1 to 10 questions जो आएंगे वो 1 mark के लिए आएंगे. So that gives us 10 marks maximum. And 11 to 30 questions जो 20 questions होंगे वो आएंगे 2 marks के लिए. So that will give us 40 marks maximum. So in all section A is therefore 50 marks. In this section there is a negative marking. See, this is the 1 mark question. So for 1 mark question 1/3 mark will get reduced and for 2 mark question 2/3 mark is reduced when there is a wrong answer given. IIT JAM का जो नेक्स्ट सेक्शन है वो सेक्शन बी है, वो है MSQ. दिस इज अ मल्टीपल सिलेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन. यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से 3 ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं, चारों ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं या एक ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है. सो 1 और मोर देन 1 ऑप्शंस आर करेक्ट इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. इससे हमें 10 क्वेश्चंस आएंगे. एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क के लिए, तो 20 मार्क्स आर देयर फॉर दिस सेक्शन, MSQ सेक्शन. और यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर ही देना जरूरी है. ऐसा नहीं है कि 3 ऑप्शंस अगर करेक्ट है उसमें से 2 आप क्लिक करके आते हो तो आपको कुछ पार्शियल मार्क्स मिलेंगे. ऐसा नहीं है. यू हैव टू क्लिक द राइट चॉइसेस ओनली. ओके,
then and then only you are going to get marks in MSQ section. यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है और अभी बोला जैसे पार्शियल मार्किंग भी नहीं है। तीसरा जो सेक्शन है IIT JAM का वो है NAT सेक्शन। That is a numerical answer type questions are there. Okay, so there are total 20 questions from this section. First 10 questions are for 1 mark, gives us 10 marks maximum. Second 10 questions are for 2 marks, gives us 20 marks maximum. So in all this section is there for 30 marks. इस सेक्शन में जो क्वेश्चंस आएंगे वो न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे। यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिए जाते हैं, जैसे कि आपको PCR के स्ट्रैंड्स काउंट करके लिखने होते हैं। वहाँ पे एक न्यूमेरिकल कीपैड होता है। यूजिंग दैट कीपैड यू हैव टू राइट द नंबर, जो भी नंबर आपका आंसर में आता है वो आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे आएंगे एंजाइम काइनेटिक्स से क्वेश्चंस आते हैं। PCR में जैसे मैंने अभी बोला वैसे क्वेश्चंस आते हैं। नंबर ऑफ सेल्स काउंट करने के लिए जो बैक्टीरियल सेल्स जो हम काउंट करते हैं उसमें से क्वेश्चंस आते हैं नैट सेक्शन में। इस तरह से जहाँ पे और एक लिपिड में से आफ्टर बीटा ऑक्सीडेशन हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वुड बी देयर, इस तरह के जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस है वो यहाँ पर इस सेक्शन में आ सकते हैं। तो ये सेक्शन हमें देता है 30 मार्क्स और यहाँ पे भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। या तो आपका आंसर गलत हो सकता है या सही। सही हुआ तो मार्क्स मिलेंगे, नहीं हुआ तो कुछ नहीं कटेगा। इस तरह का ये सेक्शन है। So it all देखा जाए तो सेक्शन A, only section A is having negative marking, section B and section C are not having negative marking. तो समराइज हम यहाँ देखें तो फर्स्ट है MCQ सेक्शन, वहाँ पे 30 क्वेश्चंस आएंगे, that is for 50 marks. सेकेंड है MSQ सेक्शन, that is a multiple select type of questions. Total number of question 10 questions and that is for 20 marks. Third section है NAT section, that is numerical answer type questions would be there. यहाँ पे 20 questions are there and that is for 30 marks. So total there is a 100 marks and 60 questions. So ऐसी ये एग्जाम है जो आपको अभी देनी है। अभी इसके फॉर्म्स सितंबर के फर्स्ट वीक में आएंगे जो IIT JAM बायोटेक्नोलॉजी 2021 में होगी। फरवरी में एग्जाम होती है, आपको अभी फॉर्म भरने हैं और इसके लिए प्रिपेयर करना है। तो ये एग्जाम में मैं आपको एक बता दूं कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। अनलेस यू आर क्लियर विथ all the concepts related to our subject, you will not able to solve the questions from this exam. तो कौन सा भी क्वेश्चन, कौन सा भी कंसेप्ट सामने आता है तो उसको थरोली स्टडी करना सीख लीजिए, तो आपको ये एग्जाम इजी जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। और मैं यहाँ हूँ ही। आपको अगर मेरा चैनल पसंद है, मेरे वीडियोस पसंद हैं तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Also, don't forget to hit the bell icon. Thanks for watching.